یہ سبق اس بات پر غور کرتا ہے کہ پیدائش کی کتاب انسان کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جب انسان کی تخلیق کا مطالعہ کریں تو یہ پوچھیں انسان کے لیے خدا کے ارادے اور مقصد کو جانیں کہ وہ کیا ہیں۔ پیدائش کے پہلے باب میں انسان کی تخلیق کی تفصیل ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ پیدائش دوسرے باب کی 18ویں آیت میں خداوند کہتا ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ پیدائش دوسرے باب کی 21ویں سے 24ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اس وجہ سے آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے مل جائے اور وہ ایک جسم ہو۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک بات جو متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کلام مقدس کہتی ہے کہ خدا روح ہے اور اس کا کوئی جسمانی بدن نہیں ہے، اس لیے یہ مماثلت انسان کے جسم کی طرف اشارہ نہیں کر سکتی۔ گویا انسان خدا جیسا لگتا ہے، تو اگر یہ جسمانی مشابہت نہیں ہے تو یہ کس کا حوالہ ہے؟ اس سلسلے میں لوگوں کے وہ تاریخی سیاق و سباق جنہوں نے پہلی بار یہ صحیفے حاصل کیے مدد کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل بت پرست دیوتاؤں کی شبیہات سے بھری دنیا میں رہتے تھے۔ یہ ان کے لیے کوئی نیا تصور نہیں تھا۔ بت پرست معبودوں کی تصاویر ہر جگہ ان مندروں میں پائی جاتی ہوں گی، جبکہ بت پرستوں کے معبودوں کے تصورات لکڑی، پتھر یا کسی قیمتی دھات سے بنتے تھے۔ پیدائش میں خدا کی شبیہ خود انسان ہے۔ اب دیوتاؤں کی شبیہات کو کبھی بھی مکمل معنوں میں دیوتا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ فرض شدہ موجودگی اور حکمرانی کے آلات تھے۔ ان کا مقصد بت پرست دیوتا کی روح کے لیے ذریعے قائم کرنا تھا کہ وہ اس مندر میں موجود ہوں اور حکومت کریں۔ اس طرح عبادت کرنے والے کو رسمی شکل کے ذریعے معبود کی طاقت تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت ہوتی۔ رسمی ہیرا پھیری کی ایک شکل جس کا مقصد آخرکار عبادت گزار کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے دیوتا کی طاقت کو تبدیل کرنا تھا۔ اگرچہ خدا کی شبیہ کا خیال بنی اسرائیل کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن یہ خیال کہ انسان خود خدائی خالق کی شبیہ کے طور پر کام کرنے کے لیے تھا، ایک دنیا کو بدلنے والی سچائی تھی۔ جب یہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور مشابہت میں پیدا کیا، تو یہ اس فعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو خدا نے انسان کو زمین پر اپنے نمائندے بننے، روح القدس سے معمور ہونے، الہی نائب کے طور پر حکومت کرنے اور قابو کرنے کے لیے دیا۔ نمائندے بادشاہ ہوتے ہیں جو کسی بڑے بادشاہ کی مرضی اور طاقت سے حکومت کرتے ہیں۔ فعل اور شبیہ پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت میں خدا کے فرمان میں براہ راست پابند ہے، جہاں خدا کہتا ہے ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا نے کبھی نہیں چاہا کہ اپنی اعلیٰ ترین تخلیق کے ساتھ کسی درمیانی شبیہ کے ذریعے بات چیت کرے، بلکہ انسان کو زندگی میں وہ شبیہ بننے کے لیے بنایا جو انسان میں اس کی روح القدس کی موجودگی اور حکمرانی کے ذریعے روحانی اشتراک فراہم کرتا ہے۔ بعد میں یسوع اس کی سچائی کا اعلان کرے گا۔ آپ کو نہ صرف جسمانی بلکہ مکمل طور پر روحانی بھی بنایا گیا تھا۔ خدا کے شبیہ کے طور پر آپ خدا کی فکری، اخلاقی اور تخلیقی روح میں شریک ہیں۔ یسوع نے یوحنا 3:6 میں کہا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، جو کہہ رہا ہے کہ آپ کی جسمانی پیدائش نے آپ کا ایک جسمانی وجود بنایا ہے۔ یہ آپ کا جسمانی وجود نہیں ہے جو خدا کی شبیہ اور مشابہت کی عکاسی کرتا ہے، یہ وہ حصہ ہے جو آپ کو روحانیت میں حاصل کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیدائش کے باب 2 میں
जब खुदावन खुदा मिट्टी के इस टुकड़े को लेकर उसे बनाता है और फिर उसमें जिंदगी का कलाम फूंकता है तो इंसान एक जिंदा जान, एक जिंदा रूह बन जाता है। आपको रूहानी होने और उसकी इबादत करने के लिए पैदा किया गया था। अगर आप जिस्म से पैदा हुए हैं लेकिन रूह से पैदा नहीं हुए हैं तो आप यीशु मसीह में अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने दिल में नई पैदाइश के इस अमल की जरूरत है। आप खुदा के साथ ताल्लुक में रहकर उसके रूहुल कुद्स से मामूर होकर और उसकी मर्जी और उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हुए दुनिया के सामने उसकी नुमाइंदगी करते हुए खुदा की शबीह को जाहिर करते हैं। एक और मुशाहिदा जो आप इंसान की तख्लीक के बारे में कर सकते हैं वो ये है कि उसने इंसान को नर और नारी पैदा किया। पैदाइश 2:18 में खुदा कहता है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। इसका मतलब है कि औरत को मुकम्मल करने वाले के तौर पर पैदा किया गया था। खुदा ने औरत को मर्द को मुकम्मल करने और उसे पूरा करने के लिए बनाया है। जब खुदा इस मर्द और औरत को एक पुरअज़्म जिंदगी भर जिनसी मिलाप में इकट्ठा करता है तो वो मर्द और वो औरत एक जिस्म में इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ मुकम्मल हो जाते हैं, दो एक हो जाते हैं। खुदा ने इंसान को पैदा किया, मर्द और औरत। अब कुछ तसव्वुर करते हैं कि बागे अदन में आदम और हवा का गुनाह जिनसी गुनाह था। एक बूढ़े बुजुर्ग ने ऐलान किया, मसला दरख्त में मौजूद सेब का नहीं बल्कि झाड़ी में मौजूद दो लोगों का था। लेकिन ये मज़ाहिका खेज है। तौलीद खुदा की बनाई हुई तमाम मखलूकात में जिंदगी का मुतफिका कानून है। बिल्कुल इसी तरह खुदा ने इंसान को मर्द और औरत दोनों को बाहर निकाले जाने से पहले जिनसी बनाया और ऐसा करने के बाद उसे बहुत अच्छा करार दिया। वो तमाम चीजें जो खुदा इंसान से पहले तख्लीक करता है वो अच्छा करार देता है, लेकिन जब वो जिनसी तौर पर मिले हुए जोड़े को तख्लीक करता है तो वो उसे बहुत अच्छा कहता है, यानी ये निकाले जाने से पहले है। जब खुदा उस मर्द और उस औरत को एक साथ लाया तो उसने आज जमीन पर सबसे अहम इदारा यानी खानदान, घर वजूद में लाया। ये खुदा का मंसूबा था जब उसने इन दोनों को मर्द और औरत बनाया कि वो दो अफराद को लेकर इन दोनों अफराद को इकट्ठे मिलाए ताकि वो वालिदैन बन सकें। ये जिंदगी का वो अजीम कानून है जिसने पूरी नस्लें इंसानी को पैदाइश और सिमत अता की है। जिंदगी के इस कानून को काम करने के लिए खुदा के पास दो मुनासिब वालिदैन का होना जरूरी है। दो मुनासिब वालिदैन रखने के लिए आपके पास मुनासिब शरीक होना चाहिए। मुनासिब शरीक के लिए आपके पास दो मुनासिब अफराद होने चाहिए। इसे मुसल्लस की तरह सोचें। आपके पास नीचे की लकीर के बगैर या दोनों इतराफ के बगैर मुसल्लस नहीं हो सकता। वालिदैनियत शराकत की मुनासिबियत पर मुनहसर है। शराकत दारी सिर्फ इतनी ही मुअस्सर है जितनी दो अफराद जो शराकत बनाते हैं। जब पाक कलाम मुनासिब शराकतदार वालिदैन और अफराद बनने के बारे में मशवरा देता है तो कलाम हमेशा एक मुनासिब शख्स होने के साथ शुरू करने की हिदायत करेगा। उस शख्स से शुरू करें जो आप हैं। मिसाल के तौर पर पहले पतरस के 3 बाब में पतरस उस औरत से मुखातिब है जिसका शौहर है जो कलाम की ताबेदारी नहीं कर रहा है। पतरस रूहुल कुद्स के इल्हाम के तहत उस औरत से बात करता है कि उसे किस किस्म का होना चाहिए। पतरस उसे बताता है कि एक तब्दील शुदा बीवी बदकार शौहर की बेहतरीन गवाह है। जब ज्यादातर लोग शादी की मुशावरत के लिए आते हैं तो वो आम तौर पर दूसरे शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं। पूरा ख्याल ये है, अगर आप सिर्फ दूसरे शख्स के साथ मसाइल हल कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ताहम कलाम पाक कहता है कि मुसल्लस के निचले हिस्से से अफराद के साथ शुरू करें। आपसे शुरू करें। आप अकेले खुदा के सामने खड़े होंगे और यहाँ जमीन पर अपने रवैये का हिसाब देंगे। आप अपने अमाल की वजाहत के लिए किसी और की तरफ इशारा नहीं कर सकेंगे। आप वाहिद शख्स हैं जिसके बारे में आप बिल आखिर कुछ कर सकते हैं। खानदान के कानून में फर्द से शुरू करें और फिर शराकतदारों के जोड़ की तरफ बढ़ें और फिर वालिदैन के किरदार पर गौर करें। कलाम के मुताबिक एक बच्चे को बड़ा होना है और छोड़कर
और तोड़ के उसको अपनी शराकतदारी कायम करनी है। पैदाइश 2:22 कहती है, मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। यही जिंदगी का कानून है। आपके बच्चे आपके पास एक मखसूस अरसे के लिए हैं और फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो अपना इकट्ठा खानदान बनाएंगे। ये कसीर नस्ल के घरों की मुजम्मत नहीं है, बल्कि इस शख्स की जिंदगी में शौहर और बीवी की शराकत की तरजीह पर जोर देता है। हर एक को किसी और के साथ जुड़ना है। यहाँ एक बड़ा चैलेंज ये जानना है कि एक दिन ये नन्हा लाचार बच्चा अपने तौर पर होगा या होगी, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक को जिंदगी के उस मरहले के लिए तैयार करें। वालिदैन की तरफ से इस्लाह और काबू करने के तौर पर जो कुछ शुरू होता है वो बच्चे का अपना जाती यकीन बन जाना चाहिए। इसलिए आपके पास वालिदैन और उन्हें शागिर्द बनाने के लिए महदूद वक्त है। इसका मतलब है कि आपको इस बच्चे के गुनाहगार से खुदा के बंदे में तब्दील होने के लिए दुआ करने की जरूरत है। ये आपके बच्चे का मसीह में तब्दील होना और उसकी जिंदगी में रूहुल कुद्स का काम है, जो आपके बच्चे के दिल में रूहानी इक़्तिदार डालने वाला है। लेकिन मुनासिब वालिदैन होने का इन्हसार आपकी शराकत की मुनासिबियत पर है। सुलेमान ने ज़बूर 127 में कहा है कि बच्चे तीर और वालिदैन कमान की मानिंद हैं। बच्चे जिंदगी में जो जोर और समत इख्तियार करते हैं उसका इन्हसार उस कमान पर होता है जिससे उन्हें जोर दिया गया है। इसीलिए एक सेहतमंद घर तमाम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मर्द और औरत के दरमियान मयारी शराकतदारी खुदा के बुनियादी कानून जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुसल्लस अस्तारे के बारे में दोबारा सोचिए। मुसल्लस के ऊपरी हिस्से में खुदा के साथ और नीचे के दोनों सिरे पर शौहर और बीवी। जैसा कि वो दो लोग खुदा के करीब आते हैं, मुसल्लस की लकीरों पर अमल करते हुए वो एक दूसरे के करीब आते हैं। किताब मुकद्दस के मुताबिक मर्द और औरत के दरमियान इस रिश्ते में वो एक तन है, वो आपस में बंधे हुए हैं और एक जिस्म है। यसु के नए अहदनामे के बयान के मुताबिक जब उसने हमें पैदाइश की किताब की कुलीद दी, शादी एक अक़दी अहद है क्योंकि सिर्फ खुदा ही उसे एक साथ रख सकता है। यसु ने रसूलों को बताया कि ये अहद जैसा कि तमाम अहद हैं मुस्तकिल होना था। जब यसु ने सिखाया, जिसे हम शादी के रिश्ते की मुस्तकिलियत कहते हैं, तो एक रसूल ने मत्ती 19वें बाब की 10वीं आयत में कहा, अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। जिंदगी के लिए एक औरत का ख्याल उस रसूल के लिए बहुत ज्यादा था। यसु ने उसे तसल्ली या जगह नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा, सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है। ये एक रब्ती रिश्ता है क्योंकि खुदा ने इसे एक साथ रखा है। खुदा ने इसे इकट्ठा किया और सिर्फ खुदा ही इसे एक साथ रख सकता है। ये एक अहद का रिश्ता है क्योंकि ये जिंदगी का कानून है जिसके जरिए इंसानी खानदान इस दुनिया में आता है और इसकी परवरिश और इस दुनिया में जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार होता है। इस तरह शादीशुदा जोड़े दुनिया के हाल में खुदा के साथ अपना हिस्सा डाल सकते हैं। कलाम मुकद्दस मलाकी 2:16 में कहती है कि खुदा तलाक से नफरत करता है। तलाक के लिए उस नफरत का एक हिस्सा अहद साजी की अहमियत की वजह से है, लेकिन एक और वजह है जिसे बच्चों के हुकूक कहा जाता है। बच्चे जानते हैं कि वो अपने वालिदैन की शादी की तरह ही महफूज हैं। इसीलिए अगर आप देखना चाहते हैं सुकून की एक झलक, तो अपने बच्चे पर नजर करें। जब आप और आपका साथी मोहब्बत रखते हैं, ये उन्हें महफूज महसूस कराता है। अगर शादी अच्छी गुजर रही है तो वो महफूज है। अगर आप में खौफनाक बहस हो रही है तो ये अदम तहफ़्फ़ुज़ और दहशत का बाइस बनती है। वो जानते हैं कि वो सिर्फ आपकी शादी की तरह महफूज है। ब्याह का मकसद भी एक खुसूसी रिश्ता है। एक खुदाई ब्याह में खुदा हर एक साथी को जिनसी तौर पर दूसरों को छोड़ने के लिए बुलाता है। ब्याह में जिनसी और यहाँ तक कि जज्बाती वफादारी खुदा की नजर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। बस इसी तरह ब्याह भी एक हमागीर रिश्ता है। सुलेमान ने वाइज 4 में कहा कि ब्याह का रिश्ता जैसा कि खुदा ने इरादा किया है वो ऐसा है जैसे तिहरी डोरी
जो आसानी से नहीं टूटती, जैसा कि पैदाइश में जहां दोनों एक हो जाते हैं, वाइज में दोनों तीन बन जाते हैं। शोहर, बीवी और खुदा, तीन तारे एक डोरी में एक साथ पायदार और मजबूत। खुदा ने जिस्मानी और जिनसी मुलाप को खलक किया, लेकिन उसने उसे इस वहदानियत की खुशी के इजहार के लिए बनाया कि वो गहरी सतहों पर हों। एक दिल, एक ज़हन, खुदा के साथ अपनी वाबस्तगी के इर्द गिर्द इकट्ठे होना। उनका मकसद बातचीत और मिलजुल कर रहना था। जिंदगी के इस कानून के बारे में एक आखिरी ख्याल, जैसा कि आप देखते हैं कि इसे पैदाइश में बयान किया गया है। शादी, घर और खानदान का मुशाहिदा किया जा सकता है, जैसा कि काम करना मकसूद था। किताब के मुताबिक आप खुदा की मदद के बगैर मुनासिब वालिदैन नहीं बन सकते। ज़बूर 127 की पहली और दूसरी आयत में कहता है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है। यहाँ इसी ज़बूर की एक दिलचस्प सतर है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। इसका महबूब सोता है जब आप गैर फाल हो जाते हैं और सबको उसके लिए छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी उसके हाथ में सौंप देते हैं। मौजज़ात का मौजज़ा, वो आपको आराम देता है। सुलेमान कहता है, खुदा अपने प्यारे को मुनासिब वालिदैन बनने की सलाहियत देता है जब आप अपने बच्चों को उसके हवाले कर देते हैं और आप उसे घर बनाने देते हैं। खुलासा ये कि आप खुदा की मदद के बगैर मुनासिब वालिदैन नहीं बन सकते। कलाम मुकद्दस इसे इस तरह बयान करती है। यीशु यूहन्ना 3 बाब की 6 और 7 आयत में कहता है, जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्मानी है और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। हैरान ना हो कि मैंने आपसे कहा आपको नए सिरे से पैदा होना चाहिए। ये कलाम मुकद्दस का अजीम पैगाम है। खुदा और इंसान के दरमियान इस तलाक को खुदा कैसे मिलाता है? खुदा आप में कैसे शुरू करता है कि आपको नई तख्लीक की जरूरत है? वो ये नई पैदाइश के जरिए करता है। इसीलिए अहदनामा कदीम कहता है यीशु आ रहा है और नया अहदनामा कहता है यीशु आया। आप नए सिरे से पैदा हो सकते हैं। आप पैदाइश का वो अमल अपने दिल में रख सकते हैं और फिर आप यीशु मसीह में एक नई पैदाइश बन सकते हैं। बस कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप खुदा की मदद के बगैर एक मुनासिब वालिदैन या एक मुनासिब साथी या एक मुनासिब शख्स नहीं बन सकते। इसलिए आपको पैदाइश की किताब बाब 1 और 2 पर वापस जाने की जरूरत है और इंसान की तख्लीक पर गौर करें जैसा कि ये था और अपने आप को वैसा ही समझें जैसा आपको होना चाहिए। आप एक शख्स के तौर पर कभी भी मुनासिब नहीं होंगे जब तक कि आपकी जिंदगी में नई पैदाइश ना हो। खुदा आपको एक मुनासिब शख्स, साथी और वालिदैन बनने में मदद करता है। इस सबक में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा खुदाबंद यीशु मसीह आपके दिल को हौसला दे और आपको हर अच्छे काम में मजबूत करे। आमीन।